Last chemical reaction means last chemical property of chapter number 4. ये हो खुश हो रहे होंगे ना, बोरिंग लग रहा है? बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी. केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आई लव. It doesn't mean that you also should love or you also should like, but then also I'm telling that the way I explain, I think so you are understanding, right? Okay, चलो. Displacement reaction, last I had told you we had seen this physical property, chemical property in that reaction with oxygen, reaction with water and reaction with acids, bases, right? और ये है फोर्थ वन, एक्चुअली ये फिफ्थ वन है. फोर्थ वन थर्ड वन में दो हमने पढ़ा, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेसिस, तो ये फिफ्थ नंबर आता. बट ये फोर्थ नंबर क्यों है? बिकॉज थर्ड वन में हमने दोनों एक साथ में कवर किया था. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट वर्ड ओनली टेल्स इटसेल्फ that what is displacement means one metal will displace another metal and will take that place. सपोज ये है तो यहाँ पे ये मेटल होगा तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे जो दूसरा कैप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि सपोज यहाँ पे कैप है, यहाँ पे कैप है और ये है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, वो कैप यहाँ पे आ जाएगी और ये डिस्प्लेस हो जाएगी, ये डिस्प्लेस कर देगी. अंडरस्टूड? सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन दिस रिएक्शन वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल. One metal displace another metal from its compound. Compound मतलब इसको बोलेंगे हम compound. सपोज कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो ये सब कंपाउंड है. जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट. अंडरस्टूड? दिस copper sulfate. So these are compounds. So one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. Aqueous solution means liquid. Solution होना चाहिए. It should not be gas. It should not be solid. Only which form? Liquid. Liquid form. ये सब बीकर में ही होगा. ये जो है वो सब बीकर में होगी. And after displacement reaction heading after this, over there one activity is given over there. That is this activity, beaker A, B, C, D, E, and that I am going to explain. So after watching this activity, after getting this activity, you will understand what is displacement reaction और किसमें होता है किसमें नहीं होता है. ऐसा फिक्स नहीं है. See, previous time we had seen that reaction with acids and bases. So in that, with dilute hydrochloric acid, copper didn't react, but with sulfuric acid, copper reacted. मीन्स ऐसा नहीं है वन साइडेड. बट सी साइंस इज नॉट आर्बिटरी. आर्बिटरी मीन्स साइंस इज नॉट वन साइडेड ऑन डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर थॉट और वन पर्टिकुलर थिंग और वन पर्टिकुलर रूल कि ये होता है तो होना ही चाहिए. मेटल, कॉपर भी मेटल है, बट दोनों एसिड के साथ रिएक्शन हुआ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ नहीं. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, बट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग ऑल्सो कॉपर डजंट रिएक्ट. कॉपर डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग. सो ऐसा नहीं कि मेटल सब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. नो, समटाइम मेटल रिएक्ट विथ सम एसिड एंड सम एसिड के साथ नहीं होगा. नॉट विथ सम एसिड के साथ होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं होगा, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ. साइंस इज नॉट एन आर्बिटरी. ओके, दिस फील्ड इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट एंड सम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि ये इसके साथ होता है. अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारे मेटल पे होता है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. It's not confirmed, it's not one-sided particular rule that it will be applicable for all metals. We have seen. Understood? So displacement reaction, keep in your mind any reaction you will learn. It's not like that all metal will react with all bases and all acids, or all metal will react with water, all metal will produce pop sound, or all metal will react with oxygen. It's not possible. It's based on some experiment and some rules and some fact. Means we should do, first of all, they need to prove by some experiment, then and then only they can say. That's why some examples, some exceptional things also I am telling that this is like this. Mercury है, mercury is one type of metal, but mercury always been found in liquid, right? mercury है वो liquid है. जनरली मेटल कौन से फॉर्म में होते हैं? सॉलिड में होते हैं. आयरन है, कॉपर है. ओके, आफ्टर हीटिंग यू कैन मेल्ट, बट मर्क्यूरी रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म ओनली. सो दैट इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मर्क्यूरी इज नॉट मेटल, उसको नॉन मेटल में डाल दो. नो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी वो मेटल के जैसी है. then we have to consider it as metal. Understood? So in this reaction, one metal displays another metal from its compound and in aqueous solution, means in liquid form. लिक्विड के सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट, ये लिक्विड नहीं हो गए, ऐसा नहीं है, बट एक्वस सोल्यूशन उसके सॉल्यूशन के अंदर. ओके, सो फर्स्ट वन एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक.
Here I have written chemical name also. This is chemical formula and this is chemical name. कि copper sulfate, Cu means copper, S capital, O capital means sulfur oxygen. तो सल्फर ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो सल्फर भी कैपिटल, एस भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल, बट यहाँ पे यू मीन्स कॉपर, ये पूरा कॉपर का नाम है, ये पूरा कॉपर है, ये एक सल्फर है और ये ऑक्सीजन, तो ये तीनों कैपिटल आएंगे, ये स्मॉल आएगा. कॉपर सल्फेट, जिंक, वन नेम ओनली, सो जेड कैपिटल एंड स्मॉल. जिंक, जिंक सल्फेट, सल्फर ऑक्सीजन कैपिटल, जिंक में जेड कैपिटल एंड स्मॉल. व्हाई? बिकॉज जिंक इज वन टुगेदर. सो जिंक सल्फेट एंड कॉपर. अब क्या हुआ देखो, कॉपर सल्फेट का हो गया जिंक सल्फेट और जिंक कॉपर. ये कॉपर, इसने जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, एंड कॉपर जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड जिंक टुक द प्लेस ऑफ कॉपर. अंडरस्टूड? सो हियर व्हाट हैपेंड, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन इट प्रोसेस्ड विथ zinc, after that it gave the product like this. Like this means zinc sulfate that was colorless and red powdery substance just settled on the bottom or in the bottom of the beaker. बीकर के बॉटम में क्या रह गया, रेड कलर का पाउडर. वो पाउडर किसका था, कॉपर का था. जनरली कॉपर का कलर ऐसा ही होता है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर सेपरेट होके पाउडरी रेड फॉर्म में बीकर के बॉटम में वो सेट हो गया. एंड जिंक replaced the copper and zinc took place with the sulfate, so it became zinc sulfate solution that was colorless but powdery red. Copper just settled in the bottom of the beaker. तो ये था डिस्प्लेसमेंट की, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर डिफरेंट. अंडरस्टूड? CuSO4, ZnSO4, ZnC, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट बीकर A. वो कौन सा था? आई वाज टॉकिंग अबाउट बीकर A. ये A बीकर का था. ओके, नाउ क्या होगा, B बीकर A का हमने देखा. लाइकवाइज यू कैन राइट अबाउट बीकर B. Same you will write, but you will displace. Now this is your task to write here reaction. If you don't understand, you can write with pencil and then you will show me. Understood? So same likewise you will write about the beaker B. When you will write about the beaker B. Same मतलब ऐसा नहीं कि ये सेम, वहाँ पे जो कंपाउंड होगा यहाँ पे जो कंपाउंड होगा और यहाँ पे जो होगा तो उसका रिप्लेसमेंट कर देना. और नाम तो आपको पता है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट होता है. ओके, सो हियर लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है वैसे आप लिखोगे, पर वहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड को आप लोगे उसके बाद में लिखोगे. ओके, C, D and E. C में है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर एंड जिंक सल्फेट प्लस आयरन. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. मैंने पहले ही बोला था, साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी. ओके, इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्ट एंड सम एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सम प्रूवन थिंग. सो ऐसा नहीं है कि ये जिंक सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है. आयरन, कॉपर, जिंक ये सब मेटल है. दिस ऑल आर मेटल एंड जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन मेटल्स, बट दिस आर मेटल. बट यहाँ पे बीकर C, बीकर D और बीकर E में डेढ़ साने होके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने मत बैठना. मैंने B का ही बोला है तो B का ही लिखना. C, D और E में पॉसिबल नहीं है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अंडरस्टूड? वो रीजन भी आपको वहाँ पे दिया है, यू कैन रीड ओवर देयर एंड हियर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. तो यहाँ पे सब में मैंने B का इसीलिए मैंने बोला कि B का ही लिखना है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वहाँ पे जो कंपाउंड होगा और उसके साथ में जो रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव एजेंट, उसके साथ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखोगे. यहाँ पे नहीं लिखोगे. C, D एंड E में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. वाई? अब ये लिख सकते हो कि पॉसिबल नहीं है, बट वाई? रीजन, सी कॉपर आयरन ऑल आर मेटल. सल्फेट का सोल्यूशन है कॉपर, तो ऐसा नहीं हो सकता कॉपर सल्फेट और जिंक अलग हो जाएगा. यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन अलग हो जाएगा, आयरन सल्फेट और जिंक अलग हो जाएगा. मतलब ये कॉपर को यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, आयरन अलग, जिंक अलग और जिंक अलग. ऐसा नहीं, हम बना सकते हैं बट ऐसा हो तो नहीं रहा है, तो लिखने का क्या फायदा. मैंने वो जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया, जब किसी ने किया लेबोरेटरी में, तो इसका पॉसिबल नहीं हुआ. नाउ रीजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपैरिजन टू जिंक. यहाँ पे क्या था, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू कॉपर. मैं वही बोली ना, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा. अभी जो ये डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसिव एजेंट कौन होता है, डिस्प्लेस करने वाला ये होता है. ओके, जो सेकेंड वन एजेंट होता है ना, जो सेकेंड वन
आयरन सॉरी जो सेकंड वन मेटल अलग से लिखी होती है वो क्या होता है, एजेंट होता है, यही इसको डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया था, ऐसा नहीं बोल सकते कॉपर ने इसको किया, जिंक हैड डिस्प्लेस टू कॉपर, सो ये कॉपर विल डिस्प्लेस टू जिंक, बट नो नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। जब डिस्प्लेसमेंट एजेंट होता है, रिएक्टिव एजेंट होता है, ये रिएक्टिव एजेंट डिस्प्लेसमेंट एजेंट है, if they are less reactive, मैंने एरो क्यों लगा, if they are less reactive then displacement reaction will not take place। अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ही पॉसिबल है, मीन्स कि जिंक were more reactive comparison to copper, so if displacement agent or reactive agent is more reactive comparison to this compound, then and then only displacement reaction can take place। मतलब कि ये हो गए वो ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होने चाहिए, रिएक्टिव एजेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट एजेंट शुड बी हायर और मोर रिएक्टिव देन कंपाउंड। तो यहाँ पे कॉपर कम है, कॉपर कम, आयरन कम, अभी कॉपर जिंक से कम है, कॉपर आयरन से भी कम है और आयरन जिंक से कम है। अभी इसमें आपको मैं लिखने के लिए दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो मोर रिएक्टिव, मतलब उसका रिएक्टिवनेस ज्यादा लिखो इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन हाउ यू विल राइट फर्स्ट वन हु इज लेस रिएक्टिव, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखे, देन हु इज असेंडिंग मतलब ऊपर, तो पहले हु इज लेस रिएक्टिव, सी हियर कॉपर इज लेस रिएक्टिव, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट नंबर पे आएगा कॉपर, आफ्टर दैट जिंक की आयरन, देखो कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है तो कॉपर थर्ड नंबर पे आया ना, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे आयरन एंड थर्ड नंबर पे जिंक अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, आयरन हायर, कॉपर आयरन से भी लेस है तो कॉपर एकदम लेस रिएक्टिव होगा, उसके बाद आयरन आएगा, पर आयरन और जिंक में फिर से आयरन कम है पर जिंक ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वी कैन प्रूव दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, कि कॉपर कम है उससे ज्यादा आयरन देन जिंक, दिस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, अंडरस्टूड। असेंडिंग मतलब बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉपर के बाद आयरन बढ़ेगा, आयरन के बाद जिंक बढ़ेगा, मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड देन कॉपर, दिस इज लेस, दिस इज थोड़ा सा ज्यादा कॉपर से, बट जिंक ये दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होना क्यों हम ये पढ़ रहे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि जब डिस्प्लेसमेंट एजेंट या फिर जो रिएक्टिव एजेंट है वो अगर इफ दे आर लेस रिएक्टिव देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, हियर इट शुड बी मोर रिएक्टिव, मतलब हम यहाँ पे जिंक लेंगे और ये सब चीज यहाँ पे ला देंगे तो होगा, मतलब यहाँ पे जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक लाएंगे तो होगा, ये प्रोसेस उल्टी नहीं हो सकती, बट यहाँ पे ये जिंक है वो जिंक अलग होगा, तो ये अलग था डिस्प्लेसमेंट एजेंट अलग था, तो क्या हुआ, तो हुआ मीन्स इन शॉर्ट कि जो यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा, जो ये एजेंट है डिस्प्लेसमेंट एजेंट या फिर रिएक्टिव एजेंट, वो ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, दिस ऑल आर नॉट मोर रिएक्टिव, दिस जिंक कंपैरिजन टू कॉपर है, कंपैरिजन टू कॉपर आयरन भी है, कंपैरिजन टू आयरन जिंक है, तो क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव है, दिस कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर लेस है, बिकॉज रिप्लेस इसको करना, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको रिप्लेस कर पाएगा, अंडरस्टूड। सो इसको रिप्लेस करना है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ही रिप्लेस कर पाएगा, देन नॉट पॉसिबल, तो दिस इज द रूल। तो ऐसा नहीं है कि सब में आप लिख दो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अबाउट बिकर नंबर बी, उसमें जो भी कंपाउंड होगा, जो भी रिएक्टिव एजेंट होगा, वो आप लिख के ऐसी केमिकल रिएक्शन बनाओगे, अंडरस्टूड। दिस इज योर टास्क एंड दिस इज हाउ ओनली यू विल राइट इन योर नोटबुक दैट आई विल गिव यू होमवर्क, you'll have to take screenshot and then you will have to write in your notebook that displacement reaction, understood। So it's not possible कि सारे के सारे मेटल के साथ displacement reaction possible है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी में जो जो रिएक्शन हमने देखे, इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके साथ वो इक्वली एप्लीकेबल है, वन साइडेड नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो करेगा, अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है कि सबको पानीपुरी पसंद है, किसी को नहीं पसंद होती है, नहीं पसंद होती है, ऐसा नहीं होता, नहीं होती है पसंद, तो ऐसे आर्बिट्ररी नहीं है, वन साइडेड नहीं है, ओके। ये सब देखना, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लास्ट टॉपिक, फिर आपको मैं बक्स दूंगी,
ऐसे तो बक्स ही रही हूँ, हाँ मैं लोड दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो होमवर्क होता है ना। तो भी उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल एन्जॉय योर वेकेशन एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट थोड़ी कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे हंसते हंसते।